صبح کی آزان ہو رہی تھی، لیکن یہ کوئی عام صبح نہیں تھی۔ مدینہ کی تنگ گلیوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ ہوا جو صحرا کی ریت سے گزرتی ہوئی آتی ہے اور جسم کو عجیب سی تازگی دے دیتی ہے۔ آسمان پر ابھی ستاروں کی چمک باقی تھی، لیکن افق پر کچھ ہو رہا تھا۔ صبح کی پہلی سنہری کرن آہستہ آہستہ مدینہ کی چھتوں کو چھو رہی تھی۔ مسجد نبوی کی طرف قدم کی آہٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ وہ چال جس میں نہ جلدی تھی نہ سستی، بس ایک ٹھہراؤ تھا۔ فجر کی نماز ادا ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس حلقے میں ایک نوجوان بھی تھا، نام صخر بن وداع الغامدی رضی اللہ عنہ۔ دیکھنے میں بالکل عام انسان، تاجر تھے لیکن کاروبار چل نہیں رہا تھا۔ سوچئے ذرا، دن رات محنت، پسینہ، بازار کی دوڑ بھاگ، لیکن جیب خالی۔ گھر آتے ہیں تو بیوی کی آنکھوں میں سوال ہوتا ہے، آج کچھ بنا؟ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، عزت کا سوال ہوتا ہے، لیکن برکت کہیں نظر نہیں آتی۔ شاید آپ میں سے کسی نے یہ محسوس کیا ہو۔ اور پھر اسی صبح کچھ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ایسی دعا فرمائی جو آج بھی ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ الفاظ صخر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑے اور ان کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، کچھ جڑ گیا۔ انہوں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا، بس آج سے میرا تجارتی سامان صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے بازار جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے صخر تاجر تھے اور وہ اپنا سامان صبح سویرے بھیجا کرتے تھے، چنانچہ ان کی دولت بڑھتی چلی گئی اور وہ خوشحال ہو گئے۔ رکیے، آپ نے ابھی کیا سنا؟ ایک آدمی جس کا کاروبار ڈوب رہا تھا، صرف ایک عادت بدلنے سے امیر ہو گیا۔ صرف ایک عادت۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ایمانداری سے جواب دیجئے، آج آپ کتنے بجے اٹھے؟ کیا فجر کی آزان پر یا جب سورج آپ کے کمرے کی کھڑکی پر دستک دے رہا تھا؟ ہم رات 2 بجے تک فون پر ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کامنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی سٹوری چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح 10 بجے اٹھتے ہیں جب وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی تھی، اور پھر شکایت کرتے ہیں، میری زندگی میں برکت کیوں نہیں، میرا کام کیوں نہیں بنتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ نے غور سے سنی، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ کوئی موٹیویشنل لیکچر نہیں ہے جو سن کر اچھا لگے اور بھول جائیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیے، صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں اپنائے، اور جن سے عام انسان جیسے آپ اور میں نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوئے بلکہ آخرت کی کامیابی بھی پکی ہو گئی۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے اپنے دن کو مقصد کے ساتھ کیسے شروع کریں تاکہ شام تک تھکاوٹ نہیں، سکون ہو، اپنے وقت کو کیسے بیلنس کریں، عبادت، کام اور خاندان تینوں کا حق، اسلامی تعلیمات سے پروڈکٹیوٹی کیسے حاصل کریں بغیر کسی فینسی ایپ کے، اپنی عادتوں کو کیسے بدلیں اور ایک بہتر مسلمان بنے جو سوسائٹی کے ساتھ آخرت کے لیے بھی فکر مند ہو۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے آخر تک۔ ایک صبح کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ماحول میں سکون تھا، وہ سکون جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ خاموشی۔ پھر ایک ہاتھ اٹھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر پوچھا، آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ وہی ہاتھ۔ پھر پوچھا، آج کس نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا؟ وہی ہاتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، جس شخص میں یہ سب خوبیاں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ سوچئے، صبح کا وقت ہے، دن ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 عبادتیں پوری کر چکے۔ یہ پروڈکٹیوٹی نہیں تو کیا ہے؟ ان کے پاس نہ گوگل کیلنڈر تھا نہ کوئی ایپ۔ پھر راز کیا تھا؟ دا سیکرٹ، نیت، ایکشن۔ اسلام میں پروڈکٹیوٹی کے بنیاد نیت ہے، ایکشنز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صبح الارم بجتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، اس وقت پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا پہلا خیال یہ ہو، الحمدللہ، اللہ نے ایک اور دن دیا، بس یہیں سے سب بدلتا ہے۔ جاب عبادت بن جاتی ہے، بچے پالنا عبادت بن جاتا ہے، والدین کی خدمت عبادت بن جاتی ہے۔ پہلا اصول، اپنی نیت ٹھیک کرو۔ سوچئے، ایک ایسا انسان جو سلطنت چلا رہا ہے اور پھر بھی تہجد، فیملی، بازار، سب کچھ۔ یہ تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کا دن صبح قرآن اور ذکر، فجر کے بعد لوگوں کے مسائل، دوپہر محنت، شام فیملی، رات محاسبہ۔ 24 گھنٹے ہمارے پاس بھی ہیں، فرق صرف پرائیورٹیز کا ہے۔ The principle prioritize like a صحابی۔ اسلام میں ٹائم مینجمنٹ کا اصول بہت سمپل ہے، پہلے وہ کام کرو جو اللہ نے فرض کیا ہے، پھر باقی کام کرو۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نوافل سے میرے قریب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرائض ادا نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث
हदीस 6502। आप खुद से पूछें, क्या आपकी प्रायोरिटीज दुरुस्त हैं? आप जिम जा रहे हैं लेकिन फजर की नमाज कज़ा हो रही है। आप सोशल मीडिया पर 3 घंटे गुजार रहे हैं लेकिन कुरान की एक आयत नहीं पढ़ी। आप दोस्तों के साथ घंटों बातें कर रहे हैं लेकिन वालिदैन से बात करने का वक्त नहीं, तो आपका वक्त जाया हो रहा है। दूसरा उसूल, अपनी प्रायोरिटीज को इस्लामी अंदाज में सेट करो। तरतीब ये होनी चाहिए, पहले फराइज, पहले नमाज, कुरान, वालिदैन का हक, बीवी बच्चों का हक, दूसरे जिम्मेदारियां दूसरे नंबर पर, काम, तालीम, कमाई, तीसरे जाती तरक्की तीसरे नंबर पर, वर्जिश, स्किल्स सीखना, सोशल लाइफ। इस तरतीब को अपनाएं और देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी है। आजकल एक अजीब सोच फैली हुई है, रात को जागने वाले कामयाब होते हैं, नाइट आउल्स ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, लेट नाइट हसल इज इक्वल टू सक्सेस। गलत, ये मगरबी सोच है जो इस्लामी फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम के लिए, और सुबह के औकात खास तौर पर फजर के बाद का वक्त। ये वो वक्त है जब दिमाग ताजा होता है, तवानाई ज्यादा होती है और अल्लाह की खास रहमत उतरती है। द मिरेकल ऑफ फजर प्रेयर। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को इशा और फजर की नमाज की फजीलत का इल्म हो जाए तो वो घुटनों के बल भी आ जाए, घुटनों के बल यानी रेंगते हुए भी आ जाए। सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहम बात फरमाई। अब खुद से पूछे, पिछले हफ्ते में आपने कितनी फजर की नमाजें बाजमात पढ़ी? ईमानदारी से गिने। अगर जवाब 0 या 1-2 है तो यही वजह है कि आपके दिन में बरकत नहीं। अगर आप फजर की नमाज बाजमात पढ़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? आपका दिन जल्दी शुरू होगा। जब दूसरे अभी सो रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे, आपके दिन में बरकत होगी। कम वक्त में ज्यादा काम, आपकी सेहत बेहतर होगी। सुबह की ताजा हवा, सूरज की रोशनी, आपका दिमाग तेज होगा, फोकस बढ़ेगा और सबसे बढ़कर अल्लाह राजी होगा। तीसरा उसूल, अपने दिन की शुरुआत फजर से करो। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, सिर्फ एक हफ्ता 7 दिन फजर की नमाज बाजमात पढ़ें, अगर मुमकिन हो तो मस्जिद में। उसके बाद 5 मिनट कुरान पढ़ें, चाहे सिर्फ 1 रुकू, और फिर 10 मिनट अपने दिन की प्लानिंग करें। कागज पर लिखें कि आज क्या करना है, सिर्फ 1 हफ्ता, और फिर देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। 17 रमजान सना 2 हिजरी। रात का अंधेरा, सहरा की ठंडी हवा और रेत पर 313 लोग बैठे हैं। 313? आपके लोकल मस्जिद में जुम्मे के दिन कितने लोग आते हैं? शायद इतने ही। अब उन 313 लोगों को देखें, उनके पास पूरी जिरह नहीं थी, घोड़े सिर्फ 2 थे, ऊंट 70 थे, तलवारें पुरानी थी, और सामने कुरैश की फौज 1000 से ज्यादा, मुकम्मल हथियारों से लैस, बेहतरीन घोड़े, तजुर्बाकार जंगजू। कोई आम इंसान होता भाग जाता या कम से कम डर जाता, लेकिन सहाबा किराम ने क्या किया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में खड़े हैं, हाथ उठाए, आंखों से आंसू बह रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। सारी रात सहाबा किराम, उन्होंने नमाजें पढ़ी, कुछ ने आराम किया, लेकिन सबके दिलों में एक चीज थी, सुकून। कैसे? क्योंकि उनके जहन में एक क्लियर प्लान था, हर एक को पता था कि उसने क्या करना है। उनके दिल में कोई खौफ नहीं था क्योंकि वो अल्लाह पर भरोसा कर रहे थे। उनका सिर्फ एक मकसद था, अल्लाह की रजा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। और नतीजा, 313 मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा मुशरिकीन को शिकस्त दी। 70 मुशरिक मारे गए, 70 कैद हुए और मुसलमानों के सिर्फ 14 शहीद हुए। ये फोकस है, ये डिसिप्लिन है, ये यकीन है। द मॉडर्न एप्लीकेशन। अब अपनी जिंदगी देखें, आप काम कर रहे हैं और फोन की नोटिफिकेशन बज गई। आपने फोन उठाया, 5 मिनट इंस्टाग्राम पर गुजर गए, फिर यूट्यूब की एक वीडियो शुरू हो गई और 30 मिनट बाद आपको याद आया, मैं क्या कर रहा था? आप पढ़ रहे हैं और दिमाग में ख्याल आया, फलाने ने स्टोरी लगाई होगी। फोन उठाया और पढ़ाई खत्म। आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग ऑफिस में है, कल वो मीटिंग है, उसने क्या कहा था, और नमाज में खुशू खत्म। ये हमारी हालत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक वक्त में 2 काम करता है वो दोनों में नाकाम रहता है। ये हदीस की रूह है। चौथा उसूल, फोकस को बढ़ाओ, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। प्रैक्टिकल टिप्स, हर काम के लिए मखसूस वक्त बनाएं। नमाज का वक्त सिर्फ नमाज, फोन साइलेंट, जहन हाजिर। काम का वक्त सिर्फ काम, नोटिफिकेशंस ऑफ। खानदान का वक्त सिर्फ खानदान, फोन दूसरे कमरे में। मल्टीटास्किंग से बचें, एक वक्त में एक काम करें, उसे पूरी तवज्जो से करें, मुकम्मल होने के बाद अगला काम शुरू करें। सोशल मीडिया को लिमिट करें, दिन में सिर्फ 30 मिनट, वो भी एक मखसूस वक्त पर, मिसाल के तौर पर असर के बाद। बाकी वक्त ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑफ रखें। एडवाइस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल जो मुसलसल किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह।
अल्लाह को वो छोटा सा अमल पसंद है जो आप हर रोज करें, बजाय उस बड़े अमल के जो एक दिन करें और फिर छोड़ दें। अब देखें हम क्या करते हैं। एक दिन जोश आता है, मैं कल से 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं हर रोज जिम जाऊंगा, मैं रोजाना 1 पारा कुरान पढ़ूंगा, और फिर 3 दिन बाद सब खत्म, वापस पुरानी जिंदगी। इस्लाम क्या सिखाता है? छोटे छोटे काम बट हर रोज। 5वां उसूल, कंसिस्टेंसी को अपनी ताकत बनाए। देखें छोटे अमाल कितने बड़े नताइज देते हैं। रोजाना 10 मिनट कुरान, साल में पूरा कुरान खत्म। कई बार रोजाना 5 मिनट जिक्र, 30+ घंटे जिक्र साल में। रोजाना 15 मिनट वर्जिश, 90+ घंटे वर्जिश साल में। रोजाना 1 सफ़ा किताब, 12 किताबें साल में। छोटे कदम बड़ी तब्दीली, आज से शुरू करें। स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। काहिली मीन्स लेजीनेस, लेकिन सिर्फ दुआ काफी नहीं, आपको अमल भी करना होगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बीट लेजीनेस। सुबह जल्दी उठो, फजर की नमाज आपके जिस्म को एक्टिव कर देती है। उसके बाद सोना मत, कुछ काम करो, अपने दिन को प्लान करो। जब आपको पता हो कि क्या करना है तो आप काहिल नहीं होते। रात को सोने से पहले कल का प्लान बनाएं। टारगेट्स छोटे रखो, बड़े टारगेट्स आपको डरा देते हैं, छोटे टारगेट्स आपको हौसला देते हैं। आज मुझे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, ये करना आसान है। आज मुझे 5 घंटे पढ़ना है, ये सुनकर ही थकान आ जाती है। खुद को इनाम दो। जब आप कोई काम मुकम्मल करें तो खुद को कुछ दें। 1 कप चाय, पसंदीदा खाना, कुछ देर आराम। ये आपके दिमाग को सिखाता है काम करना, अच्छा महसूस होना। 6वां उसूल, काहिली को शैतान का हमला समझो और उससे लड़ो। हर सुबह ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल आजिज़ी वल कसल, और फिर बिस्तर से उठकर दिखाएं। अब्दुल्ला बिन अम्र रदियल्लाहु अन्हु एक नौजवान सहाबी। इबादत का शौक कुछ ऐसा था कि हर रात तहज्जुद पढ़ते, सारी रात, हर दिन रोजा रखते, पूरा साल कुरान पढ़ते, हर वक्त। लोग उन्हें देखते और कहते माशाअल्लाह क्या आबिद है। लेकिन एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बात पता चली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और पूछा, क्या ये सच है कि तुम रात भर इबादत करते हो और दिन भर रोजा रखते हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जी या रसूल अल्लाह। अब सोचिए, आम इंसान होता तो कहता शाबाश, बहुत अच्छे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐसा मत करो, कभी रोजा रखो और कभी छोड़ दो। रात को सो भी जाओ और नमाज भी पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, और तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है। ये इस्लाम है, ये बैलेंस है, ये वो दीन है जो ना सिर्फ इबादत सिखाता है बल्कि जिंदगी सिखाता है। हाउ टू बैलेंस लाइफ। 7वां उसूल, हर चीज को उसका हक दो। अल्लाह का हक, नमाज, कुरान, जिक्र, शुक्र। जिस्म का हक, खाना, सोना, आराम, वर्जिश। खानदान का हक, वक्त देना, प्यार करना, सुनना। समाज का हक, दोस्त, हमसाए, जरूरतमंद। काम का हक, हलाल कमाई, मेहनत, ईमानदारी। जब आप हर चीज को उसका हक देंगे तो आपकी जिंदगी में सुकून आएगा, और सुकून ही असल कामयाबी है। आज इस पूरी वीडियो में हमने 7 उसूल सीखे। 1, नियत को सही करो, हर काम अल्लाह की रजा के लिए। 2, प्रायोरिटी सेट करो, फराइज पहले बाकी बाद में। 3, फजर से दिन शुरू करो, बरकत और कामयाबी का राज। 4, फोकस बढ़ाओ, एक वक्त में एक काम। 5, कंसिस्टेंट रहो, छोटे काम हर रोज। 6, काहिली से लड़ो, दुआ प्लस अमल। 7, बैलेंस बनाओ, हर चीज को उसका हक। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, ये वीडियो सुनकर भूल जाओ, कल वही जिंदगी, वही शिकायत, वही मसाइल। दूसरा रास्ता, आज से, अभी से एक छोटा सा कदम उठाओ। कल सुबह फजर की नमाज पढ़ो, अपने दिन को 5 मिनट में प्लान करो, एक छोटा सा काम मुकम्मल करो और अल्लाह से दुआ करो कि आपको इस्तकामत दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। मुस्नद अहमद, हदीस 22799। आप भी आज से एक प्रोडक्टिव मुसलमान बन सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप भी अपने खानदान, अपने समाज, अपने उम्मत के लिए फायदेमंद बन सकते हैं। बस आज से शुरू करें। अल्लाह आपको तौफीक दे, आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी फायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।